میں انویسٹ کرتا ہوں صرف پاکستان میں، وہ بھی خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کی کے ٹریڈ ایپ سے، کیونکہ وہیں سے مجھے ملتا ہے اپنی انویسٹمنٹ پہ ٹوٹل کنٹرول۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کو اپنا بروکر منتخب کریں۔ تو اب کرو انویسٹمنٹ پاکستان میں صرف KASB کی کے ٹریڈ ایپ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو بات کاروبار کی۔ میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا حسین۔ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس آج کے دن کچھ لوور نوٹ پہ دکھائی دیے، یعنی کہ ہم نے دیکھا اسٹارٹنگ آف دا ڈے کچھ نیگیٹو ٹیریٹری پرفارمنس دیکھی گئی۔ فائنلی مارکیٹ کے اندر اوور آل اگر پورے سینیریو کو وٹنس کیا جائے تو لیک لسٹر بیہیویئر بھی نظر آتا ہے، لیکن کلوزر نیگیٹو ٹیریٹری میں دکھائی دیا، یعنی 44,600 ابو کلوزر رہا۔ اٹ مینس کہ یہاں پہ جو ایک سینٹیمنٹس منڈے کے دن ایگزسٹ کرنے تھے وہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، لیکن کنکلوژن آف دا ڈے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کاشس اسٹانس بھی دیکھا جا رہا ہے انویسٹرز پوائنٹ آف ویو سے۔ فرسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ لیٹس ہیو اے لک آن ڈیلی ہائی لائٹس۔ آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھتے چلتے ہیں۔ اوپن ہوئی مارکیٹ 44,821.53 کے لیول پر، ہائر سائڈ مارکیٹ کے 44,990.11، لوور واز 44,442.28 اینڈ فائنلی کلوزر 44,629.45 کا، یعنی کہ 192.08 کا ڈکلائن آج کی مارکیٹ میں اسپیسیفکلی دیکھا گیا۔ ٹرن اوور میں 248.29 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے ہیں۔ کل کے مقابلے میں یعنی فرائیڈے کے مقابلے میں ڈکلائن دیکھا گیا ہے 85.96 ملین شیئرز کا، اینڈ ویلیو رہی 8.81 بلین روپیز۔ ویلیو وائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 8 بلین روپیز کا کام ہونا اسپیسیفکلی ان اے ڈے، اٹ مینس کہ یہاں پہ کاشس اسٹانس دیکھا جا رہا ہے۔ والیوم لیڈرز میں اونلی ون اسکریپنگ ان ریڈ ٹیریٹری، ہم نیٹ ورک لمیٹڈ اس لسٹ کو لیڈ کرے ہیں 0.18 کے اضافے کے ساتھ، 6.14 پہ کلوزر، 25.09 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے۔ WTL سیکنڈ اسکواٹ پہ 0.11 کا ڈکلائن، 2.28 پہ کلوزر، 20.83 ملین شیئرز ٹریڈڈ، اینڈ لاسٹلی ہیس کال 0.29 کا اضافہ دیکھا گیا، 5.54 پہ کلوزر رہا، 13.83 کا کاروبار رہا۔ یہ تھا والیوم لیڈرز مارکیٹ کی کرنٹ پرفارمنس۔ ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل پینی سٹاکس میں آج کے دن پارٹیسپیشن دیکھی گئی ہے، اٹ مینس کہ یہاں پہ بھی کاشس سٹانس دیکھا جا رہا ہے۔ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ٹاپک آف دا ڈے میں آج ہم اسپیسیفکلی بات کرنے والے ہیں IMF کی ٹاکس پہ، جو کہ ایک واشنگٹن میں ہمارے فائنانس منسٹر کے تھرو جاری بھی ہیں، اور یہاں پہ کچھ اچھی سکسیزفل نیوز بھی آ رہی ہیں۔ تو آج ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے ایکچولی IMF کی ٹاکس کہاں تک کنکلوڈ ہونے والی ہیں اور اس پروگرام سے ہمیں کتنے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو گیسٹ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ مظہر ناصر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ اکانومسٹ بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو نتاشا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے مظہر صاحب، IMF پروگرام ہمیشہ ہی ہم اس میں جاتے ہیں، ہمیشہ سے نیگوسیشن ہوتی ہے، ہمیشہ سے باتیں کی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں جو ہے وہ ایسا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی ایک ریجڈ انوائرمنٹ کریٹ کر دے گی۔ اس بار جو IMF کا پروگرام دکھائی دے رہا ہے وہ کتنا سکسیزفل ہے، اور اب جو ٹاکس چل رہی ہیں ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ دیکھیے IMF کے پروگرام میں آپ اس وقت جاتے ہیں جب آپ کے ملک کے اندر آپ کی جو ڈیفیسٹس ہیں اور آپ کی کیش فلوز ہیں اس کے اندر آپ ایک ایکولیبریم نہیں پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ آپ جو IMF کے پاس گئے ہیں وہ آپ ایک EFF پروگرام میں گئے ہیں، وچ از این ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی، ٹھیک ہے، اور یہ $6 ارب کی فیسلٹی ہے، اور اس $6 ارب کے اندر آپ کو تقریباً $2 ارب جو ہیں وہ پچھلے 27 مہینوں میں ملے ہیں، اور یہ پروگرام ایکسٹینڈ کیا تھا جو $6 بلین کا کیا تھا اوور اے پیریڈ آف 39 منتھس، لیکن پچھلے 2 سال میں آپ کو $2 ارب ملے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا رول بیک کووڈ کی وجہ سے بھی رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ضروریات اپنی جگہ رہیں، اور جو حکومت کی ترجیحات تھیں، یعنی کہ اکانومی کو ریوائیو کرنا، انڈسٹری کو ریوائیو کرنا، یا ویلفیئر کی طرف جانا عام لوگوں کی طرف، تو ان جگہوں پہ حکومت کافی جاتی رہی، اور اس وقت جو ہے آپ کی 3 ٹرانچز رہ گئی ہیں، یعنی 6th 7th and 8th جو $1 بلین کی ہے۔ بالکل۔ تو اس وقت جو شوکت ترین صاحب گئے ہوئے ہیں وہ $1 بلین کی ٹرانچ کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ $1 بلین کی ٹرانچ صرف ایک $1 بلین نہیں ہے۔ اچھا۔ جب آپ IMF کی ٹرانچ کی بات کرتے ہیں تو جو دوسرے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں
وہ بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں بالکل. اور اس کا پرسیپشن پھر پوری دنیا میں جاتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اس دفعہ آپ اس کو کس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں. ابھی تک نیگوسیشنز جاری ہیں اور جب تک نیگوسیشنز کنکلوڈ نہ ہو جائیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیگوسیشنز کس لیول پہ سکسیسفل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان سالوں کے اندر وہ ضرور آئی ایم ایف کو اس بات پہ مطمئن کرے گا کہ ہماری گروتھ سسٹینیبل ہوگی جو فیوچر میں ہے. کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آئی ایم ایف کا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری گروتھ شاید سسٹینیبل نہ ہو جب ہم امپورٹس کے اوپر کربز ہٹا دیں. لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جو آپ کی اکنامک پاپولیشن ہے اور جو گروتھ پاکستان میں اسٹیمولس حکومت نے دیا ہے اس کے ساتھ آپ کی گروتھ سسٹینیبل رہے گی. ایگزیکٹلی. بڑی پالیسیز چل رہی ہیں اور آپ نے بڑے رائٹ کارڈز پریس کیے ہیں. آپ نے کہا کہ ٹیرفس بھی جو ہے وہ اس کے اوپر نیگوسیشن چلی, تو ٹیرف سے بات کرنا چاہیں گے لیکن ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی جانب. ساتھ رہیے. میں انویسٹ کرتا ہوں صرف پاکستان میں, وہ بھی خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کی کے ٹریڈ ایپ سے, کیونکہ وہیں سے مجھے ملتا ہے اپنی انویسٹمنٹ پہ ٹوٹل کنٹرول. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو خادم علی شاہ بخاری سیکیورٹیز کو اپنا بروکر منتخب کریں. تو اب کرو انویسٹمنٹ پاکستان میں صرف KASB کی کے ٹریڈ ایپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ٹیرفس کے اوپر بات کرتے ہیں. مظہر ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب, کچھ ٹیرف بھی انکریز کیے جائیں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس چل رہی ہیں, تو کس قسم کے ٹیرفس جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ صرف بجلی کے اوپر ہو سکتا ہے یا گیس وغیرہ کے اوپر بھی؟ دیکھیے بجلی کے اوپر تو پچھلے ہفتے ₹1.40 انکریز آیا ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیٹرول پرائسز پیٹرولیم پروڈکٹس کے بھی بڑھ گئے. ضرور یہ بات ہے کہ آئی ایم ایف چاہے گی کہ آپ اپنی پرائسز کو انکریز کریں, اور یہ بھی ضرور ہے کہ آپ کی گورنمنٹ چاہے گی کہ یہ پرائسز انکریز نہ ہوں تاکہ عام عوام پہ یا انڈسٹری پہ بائی لارج اس کا امپیکٹ نہیں آئے. ایگزیکٹلی. لیکن ایک چیز جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر, تو آپ کا برینٹ جو تھا وہ $40 بیرل تھا. آج آپ کا برینٹ $78 پر بیرل پہ آ چکا ہے. اچھا. اور جب آپ کی پرائسز انٹرنیشنلی بڑھ گئی ہیں تو آپ کی آئل پرائسز پہ بھی وہ امپیکٹ آئے گا. اچھا. اور جب آپ کی آئل پرائسز پہ وہ امپیکٹ آئے گا تو جو آپ کا فرنس آئل پہ یا دوسرے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ آپ پاور بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ فرق آئے گا. رائٹ. تو آئی ایم ایف کی یہ مانگ ہمیشہ رہی ہے, پہلے بھی رہی ہے, لیکن گورنمنٹ نے اس طرح اس انکریز کو نہیں لیا جو آئل پرائسز کے انکریز کے ساتھ موجود تھا. گورنمنٹ نے اس کو بھی ابھی کنٹرول کر کے بڑھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کی کاسٹ تو بڑھے گی, آپ کی مہنگائی بھی بڑھے گی, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بھی فرق آئے گا, لیکن آپ کو آئل پرائسز انٹرنیشنل جو ہیں اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. اب آپ کے اوپر یہ بھی سانحہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ سے ویژن رہا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو اٹھانا ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہیں آنا چاہیے, جبکہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں جو دے سکتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں بڑھائی جا سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو اب انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں یہ اسی پلیٹ فارم کا حصہ ہیں؟ دیکھیے یہ اس پلیٹ فارم کا حصہ ہے, لیکن جب آپ بجلی, گیس, پانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں عام عوام کوئی بھی ہو, کسی بھی درجے کا ہو, اس پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. آبویسلی نچلے درجے پہ کم امپیکٹ آئے گا, اوپر درجے پہ زیادہ آئے گا, کیونکہ اسی حساب سے آپ کے ڈفرینٹ سیلنگز رکھی ہوئی ہیں کاسٹ کی, اور وہ آلریڈی اس میں انکارپوریٹ ہوا ہے. اگر آپ زیادہ گیس یا بجلی استعمال کریں گے سرٹن یونٹس کے اوپر تو آپ کو زیادہ چارج کیا جائے گا. لیکن اس کی جو آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز انٹرنیشنل, اس کا امپیکٹ تو اپنی جگہ آئے گا, اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حکومت ضرور یہ چاہتی ہے اور ہر حکومت یہ چاہے گی کہ یہ آپ پرائسز کم سے کم رکھیں, لیکن کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے یہ امپیکٹ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ پرائسز بڑھی ہیں تو کیا اس کا کاسٹ پہ کیا فرق پڑے گا, انفلیشن پہ کیا کاسٹ فرق پڑے گا, انٹرسٹ ریٹس آپ کے کہاں جائیں گے, اور اگر انٹرسٹ ریٹس جائیں گے
तो सबसे बड़ा बोरोर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसकी पेमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? एग्जैक्टली सर, इंटरेस्ट रेट का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे लोग सर थोड़ा सा फियर में दिखाई देते हैं। 25 बिप्स ही हाउएवर एक अपसाइड दिखाई देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना नेगेटिव हुआ है कि अभी भी जो इंटरेस्ट रेट का एक डेट करीब आ रही है तो वो भी एक फियर क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मार्केट आल्सो। जो 25 बेसिस पॉइंट्स आपके बढ़े हैं वो एक परसेप्शन इंक्रीज किया है कि जी हम अब इस तरफ जा रहे हैं, ये ट्रेंड रहेगा, ये ट्रेंड है। लेकिन आपके पास इंटरेस्ट रेट्स 13-14% पे थे, वहाँ से गिर के हम 7 पर आए और सही वक्त पर आए। इन्फ्लेशन एक सर्टेन लेवल तक हर कामयाब इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके पास एक डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन होती है, एक सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन होती है। और मैं समझता हूँ कि जो डिमांड ड्रिवन सब इन्फ्लेशन होती है वो हमेशा बेहतर होती है, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बेहतर होते हैं और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर उस तरह नहीं आता जिस तरह सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन होती है। अब इस वक्त इंटरनेशनली अगर आप देखें तो लोहे का स्क्रैप है, उसके दाम बढ़ चुके हैं, केमिकल्स हैं उसके दाम बढ़ चुके हैं। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बनाता था और दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, और चाइना का जो इम्पैक्ट कोविड में हुआ उसके बाद बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, या उनके जो एनर्जी क्राइसिस चाइना के अंदर आए, उन्होंने दिन तयन कर दिया कि आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं। तो वहाँ से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट्स बढ़ी हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, कि वहाँ से जो कॉस्ट आपको शायद इल्म में ना हो, लेकिन चाइना से एवरेज कंटेनर जो है उसका फ्रेट 850 से 1250 US डॉलर होता था। इस वक्त 6,500 से 7,500 डॉलर के बीच में कंटेनर की प्राइस है। दिस इज द रीजन ग्लोबली, दिस इज द फ्रेट कॉस्ट जो ग्लोबली आपकी इंक्रीज हुई है। और आपका सबसे बड़ा पार्टनर कौन है पूरी दुनिया में? पाकिस्तान का, चाइना। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि कितने परसेंट $1,000 से $7,000 पे एक कंटेनर, जिसपे वही माल आ रहा है, तो आपकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। रीजन क्या है? कंटेनर्स अचानक से कहाँ गायब हो गए जो फ्रेट का एक इसका अपसाइड ट्रेंड कोई दिखाई रीजन दे रहा है? नहीं दिया जाता। मेरी नज़र में ये कार्टेल बनाया गया जिसके तहत इसको ये किया गया। लेकिन बहुत से लोगों का कहना और एनालिसिस ये है कि क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा कंटेनर्स की शिपमेंट हुई है जो पहले नहीं हो रही थी, उसकी वजह से जो दिसंबर में क्रिसमस है उसकी वजह से डिमांड्स है, उसकी वजह से ये काम हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। लॉकडाउन का भी तो सिनेरियो था कि लॉकडाउन की वजह से भी कंटेनर्स का मैं पर्सनली समझता हूँ ये एक कार्टेल है, और ये कार्टेल ने बैकलॉग के अंदर कंटेनर्स को मूवमेंट्स को इतना शॉर्ट किया हुआ है कि कंटेनर्स जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में चल रही है या जो फिनिश प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आते हैं, लोग मजबूर हैं कि $1,000 की जगह 6,000 7,000 डॉलर में कंटेनर चाइना से ला रहे हैं, और उसी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज करती है। तो मैं इसको एक डबल वैमी कहता हूँ, क्योंकि आपका डॉलर रेट भी इंक्रीज हुआ, आपका फ्रेट कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइना के अंदर, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 7 दिन से 4 दिन या 3 दिन पे आ गई, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई। बिल्कुल। तो हर लेवल से आपकी कॉस्ट में इंक्रीज आया है, और ये इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर शायद इतना अभी नहीं आ रहा जितना आपको अक्टूबर नवंबर में नजर आएगा। राइट, चलें इस पे मजीद बात करते हैं। डॉक्टर सलमान अहमद साहब हमारे साथ और कॉल मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप ग्लोबल हेड ऑफ मैक्रो इन्वेस्टमेंट हैं फिडेलिटी इंटरनेशनल के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सलमान साहब। जी सलमान साहब, सबसे पहले ये बताइए, ग्लोबली इन्फ्लेशन एक अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर रही है, और इस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आ रहा है, सूनर और लेटर ऑब्वियसली आएगा। सर, क्या इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं इतनी इन्फ्लेशन होने के बावजूद? जी, बेसिकली पहली तो जो फोकस एरिया है कि ये इन्फ्लेशन जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ग्लोबली हो रहा है कि ये टेम्पररी है या कोई परसिस्टेंट या परमानेंट चेंज आ चुकी हुई है इसमें। So there are temporary factors जो कि energy prices पे हैं, inventories are very low, demand surge has come through, और पाकिस्तान जैसे countries जहाँ पर long term hedging programs नहीं है, in the sense हम spot पे buying करते हैं energy की, तो we are exposed to the full force of it. So in the short term तो ये काफी serious development है, और उसमें emerging markets like Pakistan, India and other Turkey for example, who are big energy importers, are going to see a lot of pressure over the next few months. Right. अच्छा सलमान साहब, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं,
इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की जब बात होती है इन पाकिस्तान, तो एक हम कहेंगे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, वहाँ से वो काफ़ी हद तक सेल ऑफ करते हुए इन द मार्केट दिखाई देते हैं। तो अब क्या स्टैंड उनका दिखाई दे रहा है जब यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आइडियल मार्केट दिखाई दे रही है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है बिजनेसेस के लिए? आई थिंक जो आपने जो फैक्टर्स हाईलाइट किए हैं दे आर इम्पोर्टेंट, बट वो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर अभी तक नहीं आ रहा वो है मैक्रो स्टेबिलिटी का। पाकिस्तान में बार बार इन्फ्लेशन आ रही है, बार बार ग्रोथ जो है वो स्विंग कर रही है, कभी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड गोइंग बैक टू वीक लेवल्स। वो जो और आप उसके ऊपर आपका डॉलर जो है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर टू फॉरेन इन्वेस्टर्स कि अंडरलाइंग प्रेशर्स क्या हैं। सो जब तक वो मैक्रो स्टेबिलिटी नहीं आएगी और विल बी विजिबल, the confidence will not come through that quickly. It will take time, but patience is the key here. मैक्रो इंडिकेटर्स आपने कहा कि कुछ स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आ रहे। अब जो कि ग्रोथ की फोरकास्ट की जा रही है आईएमएफ की जानिब से और जीडीपी की एक फोरकास्ट की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से और डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज की जानिब से, तो आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान अब राइट डायरेक्शन पे, जितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जितने मेजर्स दिए जा रहे हैं, जितनी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं? Structurally, तो there have been quite a bit of development जो कि positive side पे digitalization हो रही है, tech sector scene is starting to get a lot of attention. But having said that, we are still dependent on the IMF. We are still reliant on few billion dollars of aid or support to make sure the economy remains on track. So बड़े investors के लिए that is not a positive development. Having said that, there are underlying positive forces, but they will take time to show their results. While in the short term, Pakistan has inflation issue, oil prices going up is not a positive development for Pakistan. The fact that Pakistan government or authorities do not hedge their exposure to energy is not a positive development. अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे हैं आईएमएफ के हवाले से, तो मैं हमारे प्रोग्राम का आज टॉपिक भी यही है, मैं पूछना चाहूँगी इट्स नॉट एन एड, ये तो हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हमारी डेवलपमेंट के एक चीज़ें होती हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, तो इट्स नॉट लाइक ये एड नहीं कह सकते हम इसको। आप मुझे ये बताइए कि आईएमएफ प्रोग्राम में जो अब हम दिखाई दे रहे हैं कितना एक्सपेक्टेड है, मार्केट के लिए कितना अच्छा होगा अगर ये ट्रांच अप्रूव हो जाती है और ये चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ चले जाती हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल है आईएमएफ का अगर वो प्रोग्राम ऑन ट्रैक पे आ जाए। ऑल्दो आई वुड आर्ग्यू कि आपने कहा कि ये एड नहीं है, बट पाकिस्तान को जो आईएमएफ से फंडिंग आती है वो काफी कंसेशनल लेवल्स पे आती है। इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स के जी की मार्केट जो है वो पाकिस्तान को चार्ज कर रही है एक्स्ट्रा प्रीमियम। हैविंग सेड दैट, जो उनका एनालिसिस है और अगर प्रोग्राम वापस आता है तो बी अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी कि भाई things are on track and some kind of stability is coming back, so that those further development on that front is going to be a very positive development when it happens. अच्छा सर, ये भी बताइए कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड भी दिखाई देते हैं, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें उनका रुझान ज़्यादा पाया जाता है? क्या वो सीमेंट सेक्टर, सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, या फिर वो बैंक्स की तरफ जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट अपना शो करते हुए दिखाई देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स? फॉरेन इन्वेस्टर्स जी, देयर आर टू मेन एरियाज आपने जो बताया, जो मेन आपके जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, देयर आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट if you want to take advantage of positive growth dynamics. But I think I would say that IT is also another upcoming one, especially in the venture capital space. There's been a lot of development there. Right. और वहाँ पर government की policies have been quite positive. राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ।
یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
वेलकम बैक नाजरीन। IMF प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मजहर साहब को भी ऐड करना चाहूँगी और जो डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद है उनके कमेंट से सर आप एग्री करते हैं कि कंडीशनैलिटीज़ होती हैं एक प्रोग्राम या फिर एड कहलाता है ये? कंसेशंस होते हैं। जो डॉक्टर सलमान ने ओवरऑल बात की वो तो सही है। एड का मकसद तो ये होता है कि जो आपको पैसे मिले और आपने वो वापस लौटाने ना हो। बिल्कुल। लेकिन जो कंसेशनरी रेट्स पे वो देते हैं वो ज़रूर एक एडवांटेज पाकिस्तान को मिलता है जो पाकिस्तान उसको लेता है, लेकिन वो एड नहीं होती, कंसेशनल रेट्स होते हैं। राइट। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई डोंट अग्री विद हिम, बट द रेस्ट इज़ फाइन। देखिए होता क्या है, IMF आपको तो नहीं कहता आप मेरे पास आओ, बिल्कुल। आप IMF के पास जाते हैं और IMF के पास आप इसलिए जाते हैं कि आप अपनी सर्विसिंग करनी होती है। IMF जो है वो ये देखता है कि इस मुल्क के अंदर अगर मैं इनको पैसे देता हूँ तो क्या ये मुझे वापस कर सकेंगे और वापस करने का तरीका क्या है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक में चला जाए, लोन के लिए अप्लाई करे, तो जो बैंक है वो ये पूछेगा कि आपकी इंडस्ट्री मुनाफा करेगी, और अगर मुनाफा करेगी तो आपके खर्चे किस तरह कम होंगे, आप कॉस्ट को किस तरह कर्टेल करेंगे, आपका मुनाफा कितना होगा और कितने सालों में, कितने महीनों में आप हमारी पेमेंट करोगे। तो बिल्कुल इसी तरह IMF जो है वो अपनी कंडीशनैलिटीज़ देता है। कुछ कंडीशनैलिटीज़ हमें पता होती हैं, कुछ कंडीशनैलिटीज़ जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के पास ही होती हैं। अब इसमें जो आम कंडीशनैलिटीज़ हैं वो इस तरह हैं कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं या आपका इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाए, आपकी कस्टम ड्यूटी का रेट बढ़ा दिया जाए, लेकिन कस्टम ड्यूटी आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप WTO के सिग्नेटरीज़ हैं, तो फिर आप रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगा के उसको कर्व करते हैं। मकसद यही होता है कि आप रेवेन्यूज़ कहाँ से जनरेट करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बिजली के अगर बिल बढ़ गए या पेट्रोल के बिल बढ़ गए, उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह सिर्फ IMF की कंडीशनैलिटी नहीं है, उसकी वजह आपके इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ना भी है। अब पाकिस्तान 3 साल के बाद सुकुक बॉन्ड्स में वापस गया है इंटरनेशनली कैपिटल मार्केट्स के अंदर, और हम पहले आई थिंक 5.8 उसका बिलियन टाइम फ्रेम भी बड़ा अच्छा मिला है इस बार, मार्केट करने का एक अंदाज बड़ा अच्छा बिल्कुल। तो इसी तरह था कि 5.8 बिलियन की जगह हम 7.8 बिलियन पे चले गए। बिल्कुल। तो IMF इन चीज़ों को भी देखता है, और अब जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि इट्स नॉट जस्ट IMF, इट्स ऑल इंटरनेशनल डोनर्स जो IMF के कंधे पे ये देखते हैं कि इनको सस्टेनेबल ग्रोथ की वजह से ये ट्रांच दी जा रही है या नहीं दी जा रही। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त फौरी तौर पे अग्री नहीं करता। देखने की बात ये होती है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस क्या हैं, जो स्टैंड्स है, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला रही है ट्रेड में, इंडस्ट्री के अंदर, ओवरऑल इकोनॉमी में, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, तो क्या वो इन लाइन है, क्या वो पैसे सही जगह खर्च होंगे, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि पाकिस्तान और तरक्की कर सके। बिल्कुल। ये चीज़ देखने वाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मैं समझता हूँ जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने दी हैं वो कुछ तो आपके सामने आना शुरू हो गई और कुछ में टाइम लगेगा। सर डायरेक्शंस तो आना शुरू हो गई हैं, पॉलिसीज़ की भी बात की जा रही है। आज ही स्टील पॉलिसी की बात की गई है कि वो भी पाइपलाइन में मौजूद है। टेक्सटाइल पॉलिसी भी ऑलरेडी काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में है। इसके साथ साथ रिफाइनरी पॉलिसीज़ के जो इंडिकेशंस हैं वो तो हम बजट में भी दे दिए गए। तो आप समझते हैं कि थोड़ी देर नहीं हो गई, अब तक आ जानी चाहिए ताकि उससे सही से फ़ायदा उठा दिया जाए? टेक्सटाइल पॉलिसी ने पास होना था, ये 5वीं दफ़ा पॉलिसी है जो जिसमें डिले हुआ है, लेकिन टेक्सटाइल पॉलिसी अगर तैयार है तो मैं इसको पॉजिटिव तरीके से इस तरह लेता हूं कि हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं जो अपनी ही हुकूमत को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। नॉर्मली तो पॉलिसी हुकूमत देती है और वो पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाती है। अच्छा। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर ही क्या है? उनकी जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि ये आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं और आप सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पे और गैस पे एक्सपोर्टर्स को, तो वो कितनी सब्सिडी दे रही है और उससे आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ेंगी। एक कॉमन सेंस की बात है। तो ये इस तरह की, मैंने तो आपसे बड़ी बेसिक बात की कि इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि आप एक्सपोर्टर हैं। अब एक्सपोर्टर की कैटेगरी क्या है? मेरे लिए एक वैल्यू एडेड एक्सपोर्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उसके कि आप यार्न एक्सपोर्ट कर दें। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने से बेहतर है कि हमारे पास प्रॉपर एक वैल्यू एडेड के अंदर जाएं आप। मैं समझता हूँ यार्न एक्सपोर्ट के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप इसको यहाँ पे डेवलप करें, आप इसको यहाँ वैल्यू ऐड करें और इसको आगे लेके जाएं। मैं हमेशा आपको होना चाहिए, कोई टैक्स होना चाहिए, आप सब्सिडाइज नहीं। देखिए बात यह है कि इस हुकूमत की एक अच्छी डायरेक्शन ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करें,
प्रॉफिट मेकिंग करें, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा टैक्सेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल जब टैक्स नहीं बनेंगे तो आप स्टेट को किस तरह चलाएंगे। देखिए इसके साथ साथ हुकूमत ने ये भी देखना है कि आप अपने टैक्स नेट को बड़ा करें। अगर आपके पास आज तकरीबन 3 मिलियन लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर हैं, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इसमें 12 से 15 लाख तो वो लोग हैं जिनकी एट सोर्स सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स कट जाता है। एग्जैक्टली और बहुत से ऐसे टैक्स का जिक्र हो रहा है, मैं चाहूंगी उस नोटिफिकेशन का भी जिक्र करें जो आजकल हमने देखा है, और उसके ऊपर कुछ बातें भी बन रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो आप उसके बारे में देखिए बताइए। उसमें इस तरह है कि हुकूमत पाकिस्तान में FBR ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो अगर आपके ऊपर कोई केस बनता है और अगर आपके पास अकाउंट के अंदर पैसे हैं तो जूनियर लेवल पे, आपके पास कमिश्नर लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे वो पैसे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, अब दुनिया भर के अंदर ऐसा नहीं होता है। यू आर नॉट गिल्टी टिल यू प्रूवन। आप पे एक ज़रूर एक नोटिस के ज़रिए आप वन साइडेड या आप कोई तोहमत लगाते हैं, कोई नोटिस देते हैं किसी इंडस्ट्री को, तो आप जो है उसके पैसे निकाल लेंगे। आपको क्या मालूम कि उस इंडस्ट्री ने क्या चेक्स इशू किए हुए हैं सप्लायर्स को, और अगर वो चेक्स बाउंस हो जाते हैं तो वो उसके ऊपर FIR कट सकती है। बिल्कुल, तो ये दुनिया भर में law अच्छा है दूसरी बात ये मौजूद। कि अगर मैं इसकी कैटेगरीज बना दूं, अगर इंडस्ट्री है और आप उसके ऊपर कोई नोटिस देते हैं, उस पर ऑर्डर पास करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर पास करने का मकसद ये है कि आपने सही काम किया है। अच्छा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील करते हैं हायर लेवल के ऊपर, बिल्कुल। फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल में जाता है, और ट्राइब्यूनल के बाद कोई अगर पूरा प्रोसेस दिखाई देता है, exactly। लेकिन अगर प्रोसेस के बीच में मुझे मौका ही ना मिले कि मैं वो प्रोसेस पूरा कर सकूं और मेरे पास से पैसे चले जाएं, तो मैं किस तरह इंडस्ट्री को चलाऊंगा। अच्छा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जमीन कहीं भाग के नहीं जा रही, वो मशीनरी कहीं नहीं जा रही, तो आपको तो अपनी एतमाद जगह करना पर है। चाहिए। दुनिया भर के अंदर आप आज मिडल ईस्ट चले जाएं और आप यही इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ मौका दें, तो वहाँ की हुकूमतें आपको वेलकम करती हैं कि आइए बताइए हम आपकी किस तरह मदद करें। यहाँ आप कह रहे हैं कि जी 24 घंटे पहले इसमें CSRO में 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा ये कि थोड़ा आपके सा पैसे जा मिसगाइड रहे हैं। करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि इससे पहले भी यही हुआ था, तो फिर उसके बाद उसको चेंजेस किए गए थे और फिर देखिए चीजें जो है वो इसका अलाइन हुई थी। तरीक़ेकार को बेहतर करें, लेकिन हरेसमेंट ना फैलाएं। बात यह कि जब हुकूमत के पास लॉ मौजूद है और लॉ ये क्लियरली कहता है कि अगर एक ऑर्डर पास हो गया है तो मेरे पास हक मौजूद है कि मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं अपील कर सकता हूँ। Exactly। वो ट्राइब्यूनल बैठेगा, उसका फैसला करेगा। अगर मुझे ट्राइब्यूनल रिलीफ नहीं देगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं वहां से फैसला करूंगा। लेकिन ये तो आपने उस जमाने की बात कर दी जहाँ पे वो माफियाज होते थे कि आप जोर जबरदस्ती पे जो चाहे कर लें। इससे क्या होगा, इससे लोग, कोई भी इंडस्ट्री हो, पैसे बैंक में नहीं आप समझते रखेंगे। हैं अभी रिवर्ट हो जाएंगी, ये चीजें अभी लॉन्ग लास्टिंग दिखाई नहीं ये देती। लॉन्ग लास्टिंग इसलिए नहीं है कि अगर लोग बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे तो बैंकों में पैसे कैसे जाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के और बिजनेसमैन के। वो तो उसको किसी और चीज में चेंज करके रख लेंगे, तो फायदा नहीं इसका कोई। टेक्सटाइल की बात हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इटसेल्फ एक अच्छी पूरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक्सपोर्ट के नंबर जनरेट करने की सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी मौजूद है, और ऑब्वियसली इसके नंबर्स भी आते हैं डेली बेसिस पे। तो सर कहाँ देख रहे हैं, और जो इसकी पॉलिसी है जो कि अभी भी काफ़ी डिले हो रही है, तो आप समझते हैं कि इसका एक अपना मिनिस्टर होना चाहिए, क्या आपका आउटकम है? देखिए, अभी मैं आपसे जैसे पहले बात कर रहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने काफ़ी अच्छे इकदाम लिए हैं जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आएगी। अच्छा, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पूरे कॉमर्स को देखना है पाकिस्तान की, और मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जूनियर मिनिस्टर्स भी होते हैं जिनका काम स्पेसिफिक फील्ड्स के ऊपर होता है। बिल्कुल। अगर आपकी 50% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स है और आप उसको रुझान देना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक मिनिस्टर लेवल के ऊपर, एक मिनिस्ट्री पहले भी थी, यहाँ बनी भी थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे लोग लाएं जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ाने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद करें, इन लेजों विद द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स या टेक्सटाइल के अंदर जो कारोबार करते ये हैं, अच्छा और जो initiative हो जायज़ सकता है। बात इंडस्ट्री की है वो हुकूमत से मनवाएं, और जो जायज़ बात हुकूमत कर रही है वो इंडस्ट्रियलिस्ट माने। तो ये इसको विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर टेक्सटाइल्स के ऊपर, यानी एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऑफ टेक्सटाइल्स, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही बड़े बड़े ऐसे रिनाउंड नाम हैं जो मुल्क के लिए और अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए वक्त दे सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली सर, मैं पॉलिसीज पे ही अगेन बात करूंगी।
हमने स्टार्ट में देखा था जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आया या कंस्ट्रक्शन पॉलिसी दी गई, उससे बहुत टाइमली डिसीजन भी था और बहुत ज़बरदस्त उसके जो एक रिपरकशंस या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो आया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टाइमली चीज़ें नहीं हो रही, तो ज़्यादा चीज़ें डिले होने की वजह से ये इम्पैक्ट बिल्डअप हो रहा है जो इन्फ्लेशन की सूरत इख्तियार कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखिए पॉलिसीज़ तो पहले भी बहुत आई हैं, लेकिन वर्केबल पॉलिसीज़ सही सिमत के अंदर अब आप देखने में आपके आ रही हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, रियल एस्टेट को एक्सेप्ट किया गया। अच्छा। और इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी आई उसमें आपने उसका इम्पैक्ट देखा कि हर चीज़ जो कंस्ट्रक्शन एंसिलरीज हैं तकरीबन 65 से 72 एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, उस सब के अंदर तेज़ी आई। अब आपने जैसे स्टील इंडस्ट्री की बात की कि स्टील पॉलिसी आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि अगर मुल्क में स्टील की मांग बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से, या अदरवाइज आपकी कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी जब आप डैम्स वगैरह बनाएंगे या मुल्क में तरक्की होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, उस पॉलिसी आने से आप सही सिमत में जा सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट स्टील के अंदर मजीद काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। चलें सर, तो ये स्टील आ पे रही बात है। करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। अगर वन वर्ड में इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की डिफाइन की जाए तो मजहर नासिर साहब से पूछते हैं कि कैसे होगी सर? अगर आप वन वर्ड में इकोनॉमिक पोजीशन मालूम करेंगे, देखिए आपका इस वक्त जो पब्लिक डेफिसिट है एक्सटर्नल वो 95 बिलियन का है। अच्छा। और इसको लेते हुए मैं समझता हूँ कि जो आपकी IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं या जो इसकी डिसीजन मेकिंग आएगी शॉर्ट टर्म में, तो आप ये देखेंगे कि अगर हमें $1 बिलियन मिल जाते हैं तो जो इस वक्त डॉलर रेट बढ़ गया एकदम से, आज डॉलर 173 के लेवल तक गया है, अगर वो डॉलर रेट में आपका जो मैं समझता हूँ प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, ये अगले कुछ दिनों के अंदर ये वापस रिवर्ट होगा और आपका डॉलर एक बेसिक पोजीशन पर वापस आएगा। जरूरी नहीं कि उस पे जाए जहां पहले था, लेकिन आज से बेहतर हो जाएगा, एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा और स्टेबिलिटी के अंदर आकर फिर चीज़ों में बेहतरी आप देखेंगे। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ आएँ वो स्टेबल हों और स्टेबल तरीके से ही चल सकें। राइट, थैंक यू सो मच। मजहर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने IMF के बारे में डिटेल डिस्कशन की, जो ट्रांच आने वाली है और जिसका इम्पैक्ट मार्केट भी काफ़ी अरसे से वेट कर रही है, और जैसे ही वो ट्रांच हमारी लिक्विडिटी बन के पाकिस्तान में आती है तो इसके फर्दर इम्पैक्ट आप बेसिस पे पाकिस्तान की पॉजिटिविटी पे देखेंगे। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।